प्लीज वो अपने माइक्स पूरे टाइम म्यूट रखो। जब चाहिए होगा तो आपको कुछ बात करनी होगी तो आप अनम्यूट कर लेना। Yes, ma'am. Okay, so I'm starting, okay? ओके। Hello and good evening. I welcome you all to another session of the Real Talks. Today we have Ms. Runal Patil as a speaker who is a hardworking and a dedicated engineer. She is also a beauty blogger. Her life mantra is manifesting dreams into reality. Today, she will help us with her positive thoughts towards life and help us through her mantra. I hand over it to you, ma'am. Thank you so much. Good evening, everyone. First of all, I hope you all are safe and healthy. Okay. So, you might have seen my poster on the Instagram page of Real Talks. So, my mantra is manifesting dreams into reality. First of all, before starting the session, I would like to ask everyone, have you heard about the secret, the law of attraction? Has anyone heard about it? Yes. Yes, Srushti? Anyone else? Have anyone heard about it? Me. Okay. Oh, fine. Good. Uh, my life journey has always been revolved around this law of attraction. Okay. Now, for those of you who don't know what law of attraction is, I recall one dialogue from the film Om Shanti Om called अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसके साथ मिलाने की कोशिश में लग जाती है एंड दैट इज ट्रू दिस मीन्स लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए कुछ भी you just have to be positive about it and you have to attract that thing into your life and then also work towards it. That is also important, and then universe will make it happen for you. I have witnessed this in my life in number of times and I will be talking about that in this session. Okay, so, briefly introducing, my name is Runal and I'm 27 years old and I'm an engineer. So, I will start when I was small, right from my childhood, okay? So, bachpan se I used to speak and talk in public a lot. For some reason, anchoring is my passion. सो व्हेन आई वाज इन जूनियर केजी ना घर पे जब मैं अकेली रहती थी तो आई यूज टू डांस अ लॉट एंड वो बूगी वूगी करके एक शो आता था तो उसमें कैसे वो होस्ट लोग बोलते थे अब आपके सामने आ रहे हैं ये वो तो वैसे मैं खुद घर पे करती थी तो तब से आई वाज लाइक इनटू एंकरिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग ओके देन when I reached my 10th standard, I spoke to my parents that I want to become a radio jockey because I used to love talking on an open platform. But then what happened is my parents were against this decision because they were like, हाँ लड़की है तो वो independent होनी चाहिए. Independent होने के लिए she should have a secure job, permanent job. And going into radio jockey, which is completely a media, way back around 10 to 11 years ago when I passed my SSC. So, वो time पे social media was not there and media was not a permanent job or a job security नहीं थी media में. So my parents were like, नहीं बेटा, तुमको engineering करना है, तुमको engineering ही करना पड़ेगा. That will be your permanent job. एंड तुम सिक्योर तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो वो टाइम पे कैसा ना आई वाज 15 इयर्स ओल्ड एंड यू नो बचपन में इतना हमको समझ नहीं होता है कि आगे जाके व्हाट विल बी हाउ विल बी आवर लाइफ हाउ विल बी द करियर विच करियर इज करेक्ट फॉर अस ये चीजें हमें नहीं पता होती लाइक 15 ईयर्स अभी की जनरेशन तो स्मार्ट है तो उनको पता चलता है बट हम वो टाइम पे वे बैक 10 टू 11 ईयर्स अगो हम उतने स्मार्ट नहीं थे तो आई वाज लाइक ठीक है चलो मॉम डैड बोल रहे हैं तो कर देते हैं इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग तो ऐसे करके आई टुक एडमिशन आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड इन L&T इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग विच इज इन पवई सो LTIT में आई जॉइंड ओके तो आई वाज लाइक ठीक है करते हैं मतलब आई वाज नॉट दैट मच इनटू
स्टडीज, बिकॉज स्टडीज मतलब स्कूल में थी अच्छी बट इंजीनियरिंग नहीं करने का था, तो करने के लिए मैं आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट टिल थर्ड ईयर डिप्लोमा तक। आई यूज्ड टू गेट 73%, 75%, एक परसेंट से मेरा हर सेमेस्टर में मार्क्स बढ़ते जा रहा था। बट देन व्हाट हैपेंड इज, हमारे जो करिकुलम था इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स था, उसमें करिकुलम में 6 months का एक ट्रेनिंग होता था वेर इन यू वर एक्सपोज टू इंडस्ट्री. So I got a chance to take training in Larsen and Toubro Limited, which is in Powai, which is a multinational company and top company in engineering. So I went there. पूरा 6 months का training हुआ. I saw how people used to work, and something struck me that कि नहीं बॉस, इधर तक आई हूँ तो now I will have to take this seriously, okay? And trust me, वो training 6 months का खत्म हुआ and I stood first in my college. When I passed out my diploma college with first rank, I was topper in my college in all the 4 branches. I secured 91%. Abhi, ये 73% से 91%, how I achieved that I would like to share. जैसे कि in the start of the session I told, law of attraction, that's what helped me over here. Okay, so what I used to do is, I had a diary. Okay, तो वो डायरी में I had written a list of all the subjects that I was studying, and हर एक सब्जेक्ट के सामने I had written how many marks I want in that subject, and उसके बाजू में ब्रेस ब्रैकेट डाल के I written I want to score 90+%. Okay, and then ये मैंने लिखा और ये साइड में रख दिया, बट बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में मेरा वो चालू था. 1 sec. ओके, सो वो मैंने साइड में रख दिया एंड एवरी डे, literally every day for 8 to 9 hours I used to study and only study. Literally ऐसा होता था ना कि मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट मेरे टेबल पे लाके रखती थी, एक डोसा लाके रखती थी एंड आई यूज्ड टू स्टडी, एंड वो दूसरा डोसा लेके आती थी और मेरा फर्स्ट डोसा भी खा के नहीं हुआ रहता था कि इतना मैं मतलब उसके अंदर एनग्रॉस्ड हो गई थी. तो वो हो गया, फिर मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए एंड देन वंस पेपर वाज डन आई वाज लाइक हाँ 90%. आई यूज्ड टू विजुअलाइज इट कॉन्स्टेंटली इवन इन माई ड्रीम्स. हाँ 90% दिख रहा है मेरे को. आई यूज्ड टू इमेजिन कि मेरा रिजल्ट लगा है and I have secured 91%. Everyone is congratulating me. I am very happy. तो ये पॉजिटिव थॉट्स हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते थे. वेरेवर आई एम, इवन आई एम ट्रैवलिंग, इवन आई एम हैविंग फूड, वाचिंग टीवी, ये कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग में चलता रहता था. एंड वो टाइम पे ना एक मूवी आई थी इकबाल करके. ओके, सो दैट मूवी वाज आल्सो बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन अचीविंग योर गोल्स. तो उसमें एक गाना होता था कि आई डोंट नो यू गाइस रिमेंबर और नॉट, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी. तो वो गाना कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता था. आई यूज्ड टू विजुअलाइज इट. 91% मिलना है. उसके पहले बहुत तैयारी की थी, बहुत मतलब मर मर के पढ़ाई की थी. And then finally what happened is I secured 91%. So and plus I stood first in my college. ये मेरा डिप्लोमा का जर्नी था, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, which was like पहले स्टार्टिंग में I was not interested and then somehow interest आ गया. Okay, then I got admission in Mumbai's top engineering college, which is KJ Somaiya Vidya Vihar. तो उधर एडमिशन मेरे को मिल गया. There is one more famous college for engineering in Mumbai called VJTI. Okay, वीर माता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वो मेरे इसमें था, लिस्ट पे टॉप में था, बट कट ऑफ उतना उसका मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा था. आई गेस 1% से आई लॉस्ट दैट कॉलेज एंड आई गॉट इनटू केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. इधर मेरा दूसरा फेज स्टार्ट हुआ करियर का. नाउ दिस journey of 3 years of degree college had some ups as well as downs. Okay, so diploma में कैसे इतने बुरे लोग मुझे लाइफ में नहीं मिले थे जितने बुरे लोग मुझे डिग्री में मिले. ओके, नाउ लाइफ हिट्स यू हार्ड बिकॉज
यू आर एट अ टेंडर एज, आपको ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया अच्छी है, सब सबको हेल्प करते हैं, सब अच्छे हैं एंड सो ऑन, ओके। तो वो इंटेंशन से आई गॉट इनटू दिस कॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली आई मेट सम पीपल इन माय कॉलेज विच यू नो क्या बोलते हैं उसको, रेपुटेशन डाउन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ओके। सो वैसे मुझे लाइफ में डिग्री कॉलेज में मेरे दो कुछ ऐसे लोग मिले, so they tried not to bully me, but you know in other ways, like अगर कुछ assignment हो तो they will not help you, okay। I don't know the reason क्या था, I don't know, okay। so assignment मतलब अगर कुछ assignment हो तो वो बताएंगे नहीं, कुछ हो रहा होगा कॉलेज में तो बताएंगे नहीं, इवन कुछ प्रोजेक्ट्स का ग्रुप बनाना हो तो दे विल नॉट इन्वॉल्व मी, ओके। वो खुद के खुद ग्रुप्स बनाते थे, लाइक यू नो दे हैड आइसोलेटेड मी completely. So I was going into depression for some time, because you know when you are in a classroom full of 80 to 90 people, I'm not saying that पूरे 80 to 90 people वैसे थे, कुछ लोग थे जो वैसे थे। so ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, कि कोई ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है किसी के साथ, बट लाइफ हिट्स यू हार्ड, ये दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी, इट माइट नॉट हैपन विद एवरीवन। मेरे साथ हुआ, आई ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ओके। सो देन व्हाट आई डिड इज आई वाज लाइक छोड़ो यार, इधर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, मतलब इन सब चीज़ों में नहीं, झमेले में नहीं पढ़ना है, आई विल फोकस ऑन माई स्टडी, ओके। सो आई टू फोकस लॉट मोर ऑन माई स्टडीज। मार्क्स अच्छे आने लगे, लोगों को पता चलने लग गया कि हाँ यार इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। मतलब यू नो ना, स्कॉलर अगर कोई, नॉट आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ अ स्कॉलर, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स अगर आपको मिल रहे, प्लस में मेरा बैकग्राउंड डिप्लोमा का था, सो आई हैड बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड वो लोग कैसे 12th करके दे वर इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, सो उनको उतना उनका बेस क्लियर नहीं था जितना बेस मेरा डिप्लोमा में क्लियर हुआ था। तो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, ओके, कि यार इससे ना हम यूज़ करके, इसका इस्तेमाल करके हम इससे सारी चीज़ें सीख लेंगे, हम देख लेंगे बाद में क्या करना है। दे यूज्ड टू कम टू मी, मेरे को समझ में आता था, सब कुछ समझ में आता था कि सब यूज़ कर रहे हैं, बट यू नो परवरिश वैसे नहीं हुई थी, संस्कार वैसे नहीं थे कि किसी को, मतलब यू नो यू कैन नॉट से नो इफ एनीवन कम्स टू यू। सो मैंने उनको हेल्प किया। हेल्प करते हैं जब हम स्टडी में किसी की हेल्प करते हैं, इट्स लाइक यू आर लर्निंग ट्वाइस थ्राइस। जितनी बार आप उनको कंसेप्ट समझाएंगे उतना ही आपका भी रिविजन होगा, तो वो इंटेंशन से मैंने उनको हेल्प किया, ओके। एंड देन आई क्लियर्ड माई डिग्री, ओके। डिग्री के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में देयर आर समथिंग कॉल्ड एज प्लेसमेंट्स, ओके। सो जॉब लगना था। क्या हुआ, इट वाज अगस्त 2015, एंड वो टाइम पे यू नो प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं, लाइक कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्ट coming in your college campus and start the recruiting, okay, recruiting process. वो टाइम पे I was diagnosed with malaria, okay, and मेरा हालत इतना खराब था कि मैं completely बेड पे थी, और इतना एंटीबायोटिक्स बॉडी में जाने की वजह से वीकनेस बहुत था, completely I was completely down। और वो ये सब चीज़ तभी हुआ जब रिक्रूटमेंट चालू हुआ, जब कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए कैंपस पे आने लगी। 80% of my class was placed and I guess 4 to 5 people were not placed, और वो 4 to 5 people में मैं थी, just because my medical condition was not good. I knew I had the potential to get placed in a proper multinational company because मुझे खुद पर बहुत विश्वास था, but my health was not with me. So I didn't get depressed, I didn't get sad about it, though my parents got. I told them यार इतना मत सोचो, मुझे मिलेगा और LNT में ही जॉब मिलेगा, LNT लार्सन एंड टूब्रो, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया है, जहाँ से मुझे वो किक मिला है, इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट मिला है, वहीं पे मेरे को मिलेगा, आप चिंता मत करो। So after that I recovered from it, okay। I still remember people used to come and ask me, रूनल जॉब नहीं मिला आपको, लाइक कॉलेज में यू नो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कंपिटिटर्स होते हैं, वो जानबूझ के आके पूछते हैं। ऐसा कि मिल जाएगा, LNT में मिलेगा और मिल ही जाएगा। सो इट वॉज इन माई माइंड कि मुझे लार्सन एंड टूब्रो में ही जॉब चाहिए, एंड
that was again in my subconscious mind, and I was visualizing it again, using law of attraction कि LNT ही मिलेगा. Now getting into this multinational company is very very difficult. उनका जो स्टार्टिंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, व्हाट वी कॉल इट एज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है. At the same time, I also had a dream of going beyond and pursuing masters in United States of America. ये भी किक मेरे को मतलब तभी मिला था ट्रेनिंग के टाइम पे, बट माय पेरेंट्स वर लाइक ठीक है तुझे आगे सीखना है, बट उसके पहले यू टेक सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड देन यू ऑप्ट फॉर मास्टर्स, then that professional experience will count when I will apply for job in US after my masters. So I was like okay ठीक है, but at the same time मैं वो जो मास्टर्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं GRE एंड TOEFL, उसका प्रिपरेशन मैंने मेरे डिग्री के थर्ड ईयर से चालू कर दिया था. GRE इज वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, सो उसके लिए मैंने प्रेप थर्ड ईयर से चालू किया था. Even when I used to get my lunch breaks, I used to open my Play Store, and Play Store से मैंने कुछ apps download किए थे GRE competitive exams को prepare करने के लिए. I had ordered books, मैं घर पे पढ़ाई करती थी, पूरे दिन पढ़ती थी. विधि नोज विधि आई थी घर पे, तभी भी मेरा पढ़ाई चालू था. So वो करते गई simultaneously I was preparing for my placements also. Then L&T came into my campus. I still remember, I guess there were 120 students who had applied for this company, and I was the only one to get into this company, all because of law of attraction and hard work. So I still remember when they called out my name after cracking the aptitude test. एक ही दिन पे सब कुछ हुआ था, मुझे कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिला था. एंड 4 राउंड्स थे. फर्स्ट वाज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो तो क्लियर हो गया बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द GRE विच इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उसमें भी लाइक देयर इज इंग्लिश, देयर इज क्वांट्स, वर्बल रीजनिंग एंड AWA सब होता है. तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको आइडिया होगा इसके बारे में. तो वो जब मैं प्रिपेयर करी थी तब ऑलरेडी मेरा प्रिपरेशन हो गया था एप्टीट्यूड के लिए. GRE इज अ हाई लेवल, वेरी हाई लेवल, एंड एप्टीट्यूड जो LNT की होती है वो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल की होती है. तो दिस हैड हेल्प्ड मी, somehow helped me to crack the aptitude test of LNT. तो एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक हो गया, तुरंत उसके बाद देयर वाज ग्रुप डिस्कशन, वो भी मैंने क्रैक किया. Then I had technical interview with the panelists. There were, I guess, 2 panelists with me. हर एक का एक्सपीरियंस I guess एक का एक्सपीरियंस 30 years का था इंडस्ट्री में, और दूसरे का एक्सपीरियंस 15 years का था. So उनके साथ बैठी, 45 minutes टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, एंड देन आई केम आउट. मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, ओके, एंड आई जस्ट केम आउट एंड घर पे आ गई, बैठ गई, एंड नॉर्मल सब था. बट सबकॉन्शियस माइंड में LNT ऑफर लेटर आया है, मैं खुश हुई हूँ. यस, एवरीवन इज हैप्पी, सबको मैं पेड़े बांट रही हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ये सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली 24/7 चालू था. ओके, सो मैं ये होने के बाद आई गेस 2-3 वीक्स के बाद, I still remember the date, 23rd of November 2015, evening 5 o'clock को. I was fast asleep, my mobile was besides me, and my mobile beeped with a notification. मैंने खोला, I saw an email from corporate HR LNT stating that I had been chosen for this job, and my happiness knew no boundaries. Okay, सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कुछ भी हो लाइफ में, भले आपको कोई बाइक लेनी हो या कोई लग्जरी कार लेनी हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अडॉप्ट करो अपने लाइफ में एंड वर्क टूवर्ड्स इट. यूनिवर्स विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू. आई हैव विटनेस्ड दिस. 2 लाइफ इवेंट्स मेरे पूरी तरह से लाइफ चेंज हुई है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक तो मेरा वो डिप्लोमा में फर्स्ट रैंक आया वो था, और दूसरा तो ये है जो LNT में जॉब था. ओके,
देन LNT में जॉब लगने के बाद आई जॉइंड LNT. आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, आई वॉज गेटिंग गुड सैलरी, गुड फ्रॉम, सब कुछ अच्छा चल रहा था. ओके, बट देन आफ्टर अ पॉइंट वर्क स्टार्टेड बिकमिंग मोनोटोनस. I was not enjoying my work. I spent 4 years in LNT. तो फर्स्ट 2 years तो सीखने में चले जाते हैं कि काम क्या है, कैसे करना है एंड ऑल. ओके, तो काम चालू था, सब अच्छा चल रहा था, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वर्क समहाउ. एंड प्रेशर भी बहुत था, बहुत प्रेशर था, बहुत स्ट्रेस था. इतना स्ट्रेस था कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता था. सैटरडे संडे ऑल्सो वी यूज्ड टू वर्क. फोन्स आते थे सैटरडे संडे को भी, कभी भी आते थे, सोए हैं, उठे हैं, खा रहे, कुछ नहीं, मतलब कभी भी आते थे. सो आई स्पोक टू माई मॉम एंड डैड कि अभी हो गया ना, 3 साल हो गया है, आई वुड लाइक टू परस्यू मास्टर्स नाउ. आई थिंक आई हैव गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अभी स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है मेरे से, एंड आई एम नॉट एंजॉइंग माई वर्क. बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करियर में अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो it's very important that you start your career in a company which is into making the products. Okay, LNT is a service based company, it is not a product based company. सर्विसेज देते हैं हम लोग, मतलब LNT gives services. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे होता है ना, यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. स्क्रैच से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. सो वो मुझे एक्सपोजर LNT में नहीं मिल रहा था, एंड दिस एक्सपोजर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी once I leave India and go in United States for masters. Because if you know, USA में most of the companies are in R&D field. Okay, product based companies है, services based company नहीं है. तो somehow at बैक ऑफ माई माइंड मेरे को क्लिक हुआ कि अरे अरे ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है, बट ये एक्सपीरियंस का मुझे उधर जाके कोई यूज़ नहीं होने वाला है. सो आई स्पोक टू माई मॉम एंड डैड कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है करके एंड ऑल. सो दे वर लाइक नहीं, एक और साल निकाल दे, देन विल स्पीक अबाउट दिस. ओके, एंड साइमल्टेनियसली फिर वापस से मैं GRE टोफल का एग्ज़ाम का प्रेप वगैरह वो तो सब चल ही रहा था, बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू गो टू US एंड परस्यू मास्टर्स. सो देन आई सेड ओके ठीक है, एक साल और निकालते हैं. एक साल में स्ट्रेस इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ एंड माई फिजिकल हेल्थ. I started experiencing panic attacks. I will not lie, but it's the story of this April 2020. I was in a meeting and pressure बहुत था, काम बहुत था. At a time, I used to work on 10 projects. 10 projects के अंदर भी, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर भी 3 to 4 systems था. तो उसके लिए पूरे सब के लिए I was responsible. I was not able to manage my time properly. I was not able to manage stress. I was not able to look after myself. Okay, ऐसा नहीं है कि I didn't approach any therapist or any counselor. I did approach. मैंने meditation try किया, मैंने yoga try किया, but stress ही इतना था कि मेरे को yoga और meditation करने के लिए भी time नहीं था. So I was in a meeting April में and I had a panic attack. At that time, my dad was not here. My dad was in Alibag. Lockdown था. And मेरा भाई था and my mom was there. So I started crying. I was like, मम्मा नहीं हो रहा है मेरे से, I want to quit. But you know, parents ऐसे होते हैं कि अरे बच्चे हो जाएगा, सबको होता है स्ट्रेस, कर लो कर लो कर लो. But everything has got a limit, and ये limit cross हो चुकी थी. I said to my mom, sorry, I cannot do that. I dialed up to my dad. I asked him that shall I quit because I'm not able to handle this stress anymore. So he said, next second पे ही उन्होंने बोला कि quit कर दे, resignation डाल दे. And immediately मैंने resignation डाल दिया. And that was the best decision of my life, I would say. Because at ठीक है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ओके, बट जब तक यहाँ का पीस नहीं है ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. यू शुड एंजॉय योर वर्क. ओके, सो
वन इम्पॉर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू टेल यू कि किसी के प्रेशर में आके आप कुछ करो मत. आपको जो अच्छा लगता है वो करो. भले उसमें पैसा कम है, भले उसमें आपको उतना सक्सेस तो मिल जाएगा, भले आपको उसमें उतना ये नहीं मिल रहा है, मतलब वो फील्ड उतनी रिनाउंड नहीं है, बट इफ यू आर एंजॉइंग इट, go for it. At the end, when you lie down on your bed at night, you should have a job, something called as job satisfaction. That is very important, जो मेरे केस में नहीं था. At the starting, I was like कि हाँ LNT में मिल जाएगा, I will be happy. और ट्रेनिंग के पीरियड से आई वॉज लाइक दैट, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग अलग डिपार्टमेंट में हुआ था. मेरा ट्रेनिंग पवई में हुआ था एंड आई वॉज प्लेस्ड इन महापे, नवी मुंबई. तो इधर जो काम था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, जो काम मैं ट्रेनिंग में किया करती थी, विच आई यूज टू एन्जॉय. एंड मैंने डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का भी ट्राई किया, बट वो भी नहीं हो पाया. सो आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट एंड आई रिजाइंड. रेजिग्नेशन करने के बाद now I am completely free and I'm completely working and preparing for my GRE exams and TOEFL exams. Uh, if God wishes, I will be soon traveling to US in the coming months, and then I will be pursuing my masters over there. So at the same time, engineering ठीक है, engineering का ये पूरा फेज चल रहा था, एंड कहीं पे मेरा वो जो सपना था एंकरिंग करने का, आरजे बनने का, वो अभी भी था. सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. आई वॉज ऑलवेज इन टू फैशन एंड मेकअप ऑल्सो, सो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. उतना नहीं ग्रो हो पाया, बट आई एम नॉट बिलीवर इन नंबर्स. सब्सक्राइबर्स है थोड़े से हैं, बट आई एंजॉय दैट. So every weekend or every now and then I post some makeup videos, fashion videos. I also have an Instagram page, blogger_runal. So you can follow me there. तो उधर मैं product reviews करती हूँ. And सॉरी टू yes. इंटरप्ट. मीटिंग जब ओवर हो जाए ना, देन जॉइन द मीटिंग अगेन विद द सेम लिंक. ओके, All right, all right, all आई right. एम सो सॉरी टू इंटरप्ट. No, no, no. अभी मैं खत्म ही करने के लिए it's going to end. Okay. So Instagram page है मेरा blogger_runal. You can follow me there. I do product reviews over there, and I also make fashion videos and makeup videos. So this is what my journey is all about. Only one tip I will give you. The Secret करके एक book है. If you want to read that book, you can read that book. Otherwise YouTube पे law of attraction का video देख लो. लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरा गारंटी है 100%. फॉलो करो ड्रीम को, मैनिफेस्ट करो ड्रीम्स को रियलिटी में यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट ऑल्सो वर्क ओवर इट. यू हैव टू वर्क ओवर इट. हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो भी है करना पड़ेगा. या दैट्स इट. थैंक यू. Yeah, Vidhi, you can take over. I'm done. Could we restart the meeting? दीदी क्वेश्चंस होंगे, किसी के पास Okay. क्वेश्चंस हैं, हाँ. किसी को कुछ पूछना है? दर्शनी. हाँ, दी आपके लिए जो हम लोग के मतलब ऐसे ऑडियंस है उनके लिए मतलब उनके आपके लिए क्वेश्चंस होंगे. तो Okay. if anybody has any questions, then please unmute yourself and ask. Yeah, please go ahead. कुछ भी questions पूछ सकते हो. I have a question, दीदी. Sure. Yeah. You told your positive thoughts attracted positive things. So did your negative thoughts attracted negative situations as well? Like did the law of attraction worked in a negative way? Law of attraction never worked in a negative way because I didn't attract negativity into my place. Like I said, कि degree college में I met some people, okay, which were not supportive to me. तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को ऐसे लोग मिलने चाहिए